हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। की हाल चाल सारिਆਂ ਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਹੋਏ। ਜੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਰੋਚਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਬਹੁਤ। ਦੇਖਿਓ, ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਡਿਸਾਈਪਲ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਬਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਤਾਂ ਕਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਈ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ, ਦੋਹਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਕਵੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਰਮਾਰਥ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਓਪਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਟੀਚਿੰਗਸ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। मैं वह जिस्म नहीं जो आशिकों को नज़र आता है, वह अंदरूनी खुशी, वह सुरूर हूँ मैं। मेरा नाम लेते या मेरे लफ्ज़ सुनते ही जो महसूस होता है। हम में से अधिकतर लोगों के लिए रूमी रहस्य के पर्दे में छुपी हुई अतीत की एक ऐसी हस्ती हैं जो अपने पीछे गहरी रूहानियत से भरी शायरी की एक निराली जगमगाती हुई दास्तान छोड़ गई हैं। आपका जिक्र एक सूफ़ी कवि, एक मुस्लिम संत, रूहानियत के मुर्शिद और मेवलेवी मत के मुखिया व संस्थापक के रूप में किया जाता है। आजकल के इस आधुनिक युग में रूमी इलाही इश्क के शायर के रूप में जाने जाते हैं। आपके कलाम को इस तरह अपनाया जा रहा है जो आपको इस नवयुग के गुरु के रूप में पहचान देते हैं। पूरी दुनिया में पहचाने जाने के बावजूद रूमी एक रहस्य, लगभग एक कल्पना है जो अक्सर
उनका वर्णन करने वालों के रंग में रंगे नज़र आते हैं। बहरहाल रूमी की जीवनी लिखने वाले कुछ खास लोग जिनका उनके साथ वास्ता था, जैसे सिपहसालार, अफलाकी और उनके बेटे सुल्तान वलद के ज़रिए हम रूमी को करीब से महसूस कर सकते हैं और उनके कलाम के ज़रिए हम रूहानी सफ़र को बेहतर समझ सकते हैं। यहाँ हमें एक बुद्धिमान, नर्म दिल और गहरा इश्क करने वाले शख्स की झलक मिलती है। हालांकि गुज़रे ज़माने को मौजूदा वक्त के नज़रिए से देखना अक्सर हमें गुमराह कर सकता है, लेकिन रूमी के जीवन और चरित्र के कुछ पहलू ऐसे हैं जो सभ्यता और ऐतिहासिक नज़रिए से देखने के बावजूद सदियों बाद भी साफ उभर कर आते हैं। विभिन्न वर्गों और दलों में बटे समाज में रूमी एक पढ़े लिखे और जानी मानी ऐसी अहम शख्सियत थे जो कारीगरों और आम पेशेवर लोगों के साथ भी अपनेपन का बर्ताव करते थे। एक कट्टर मुस्लिम बिरादरी के होते हुए भी आपने सभी मतों के लोगों को अपनाया। जिस दुनिया में मर्दों की हुकूमत थी, उसमें आपने औरतों को भी अपनी सभा में आने की छूट दी हुई थी। ऐसे समाज में जहां औरतों को तालीम नहीं दी जाती थी, वहां आपने लड़कियों को पढ़ना लिखना सिखाया। पहनावे और चाल चलन के सख्त रिवाजों और उसूलों के होते हुए भी रूमी एक सूफ़ी दरवेश के लिबास में घूमते और समा की हालत में नाचने लगते थे। संयम और वैराग्य के साथ अपना जीवन बिताने के बावजूद रूमी दूसरों के अमल या बर्ताव की परख नहीं करते थे। इस कट्टरता से भरी दुनिया में अगर कोई बर्ताव शायद उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था, तो वह था लोगों का बर्दाश्त ना करने का रवैया। आज के मापदंड के अनुसार भी रूमी आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक विचार रखते थे। रूमी का नाम मुहम्मद रखा गया था और शुरू से ही उनके पिता उन्हें जलाल अद-दीन यानी कि मज़हब की शान कहकर बुलाते थे। उनका जन्म बलख के एक ऊंचे जाने माने ख़ानदान में 30 सितंबर सन 1207 को हुआ था। फ़ारस के खुरासान प्रदेश का शहर बलख अब उत्तरी अफ़गानिस्तान में है। शुरू में पारसियों यानी कि ज़रतुश्त के अनुयायी और बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायियों का केंद्र बलख उस समय इस्लाम की शिक्षा का केंद्र माना जाने लगा था। रूमी के पिता मुहम्मद इब्न हुसैन ए खातिबी बहा अल दीन वलद के नाम से और अपने खिताब सुल्तान अल उलामा यानी कि विद्वानों के सुल्तान से जाने जाते थे। वे विद्वान, सूफ़ी मुर्शिद और मजहबी वकील थे। अफलाकी के अनुसार रूमी जब 5 वर्ष के थे, उन्हें अंदर फरिश्तों के दीदार होने लगे, जिससे वे बेचैन हो उठते थे। रूमी के पिता ने अपने बेटे को दिलासा दिया और कहा कि फरिश्ते तो उन्हें दुआएं और बख्शिश दे रहे थे। लगभग इसी समय की बात है कि वहाँ वालिद ने 300 लोगों के साथ बलख छोड़ दिया। इसमें उनके परिवार के सदस्य, दोस्त और उनके मुरीदों का दल भी शामिल था। सिपहसालार और अफलाकी मानते हैं कि इस तरह मुल्क बदलने की वजह
कोई निजी तनाव रहा होगा, लेकिन हमलावर मंगोल कबीलों की नज़दीकी भी इस रवानगी के फैसले का एक पहलू हो सकता है। इस काफ़िले का मकसद शायद हज के लिए जाना और उसके बाद रहने के लिए किसी नई जगह की खोज करना रहा होगा। कहा जाता है कि रास्ते में वे फरीद अल दीन अतर से मिले, जो एक महान सूफ़ी दरवेश और परिंदों की मजलिस के लेखक थे। उन्होंने अपनी किताब अतरारनामा, राजों की किताब, की एक प्रतिलिपि युवा रूमी को दी और उनकी आने वाली रूहानी महानता के बारे में भविष्यवाणी की। यह भी कहा जाता है कि जब यह परिवार दमिश्क पहुंचा, तब रूमी और उनके पिता ने अरब के सबसे मशहूर सूफ़ी मुर्शिद इब्न अल अरबी से मुलाकात की। जब वे वहाँ से चले, तब रूमी अपने पिता की इज्जत करते हुए उनके पीछे चलने लगे। अरबी ने यह वचन कहे, वल्लाह, समंदर तालाब के पीछे चल रहा है। बलक से अपना सफ़र शुरू करने के कुछ समय बाद उन्हें यह पता चला कि उनके जन्म का शहर तहस नहस कर दिया गया। वहाँ के निवासियों का चंगेज़ खान की फ़ौज ने कत्लेआम कर दिया। हालांकि उनके सफ़र के बारे में अलग अलग विवरण मिलते हैं, पर सभी का यह मानना है कि आखिरकार वे रूम के लरंदे नामक शहर में जा बसे। यह वही प्रदेश है जिसने रूमी को उनका आज का प्रसिद्ध नाम दिया। हालांकि उनके जीवन काल में किसी ने भी उन्हें इस नाम से नहीं पुकारा था। रोमनों के लिए कहा जाने वाला फ़ारसी और तुर्की शब्द है। रूम शुरू में बाइजेंटीन साम्राज्य का हिस्सा था, जो एक लंबे समय तक पूर्वी रोमन साम्राज्य का अवशेष था। अपने समय में रूमी को मौलाना रूमी के नाम से जाना जाता था और वे रोमनों के उस्ताद के रूप में लोकप्रिय थे। 18 वर्ष की उम्र में रूमी की शादी गौहर खातून से हुई। उनके 2 बेटे हुए, बहा अल दीन मोहम्मद सुल्तान वलद, जिसे अपने दादा का नाम दिया गया था, और अला अल दीन। आगे चलकर सुल्तान वलद रूमी के दूसरे जानशीन और अपने पिता और दादा की जीवनी के लेखक बने। सन 1220 के मध्य तक यह परिवार केंद्रीय अनातोलिया में रह रहा था। कुछ समय बाद रूमी के पिता को कोनिया, जो अब तुर्की में है, बुलाया गया। वहाँ उन्होंने सेल्जुक शहजादे अला अल दीन कैकुबाद के संरक्षण में पढ़ाने और उपदेश देने का काम फिर से शुरू कर दिया। शहजादे ने कोनिया में एक मस्जिद बनाई थी और उसने कई जगहों से विद्वानों और पीर फ़कीरों को बुला भेजा था। जब रूमी का परिवार बलक में था, तब उनके पिता ने उनकी शिक्षा का उत्तरदायित्व अपने ही मुरीद सैयद बुरहान अल दीन मुहक्किक ए तरमेज़ी को सौंप दिया था। जब उनके परिवार ने बलक छोड़ा, तब बुरहान अपने जन्म स्थान तरमेज़ चले गए। बुरहान अल दीन नियमित तौर पर बहा वलद के बारे में पूछताछ करते रहते थे, लेकिन वे रूमी के पिता
की मौत के 1 वर्ष बाद ही कोन्या पहुँचे। उन्होंने रूमी के पास संदेश पहुँचवाया, लेकिन रूमी अपने पिता की मौत पर दुखी और अपने पुराने घर लरंदेव में थे, जहां उनकी माता को दफन किया गया था। बुरहान का खत मिलते ही रूमी, जिन्होंने अपने पहले मुर्शिद को 15 साल से नहीं देखा था, खुशी से भर गए। वे बुरहान अल दीन के बारे में लिखते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री काफ़ी ਵੱਡੀ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, शम्स अल दीन मोहम्मद इब्न ए मलिकदाद ए तबरीज़ी, जो शम्स ए तबरीज़ी के नाम से जाने जाते हैं, एक खाना बदोश, रीति रिवाजों को ना मानने वाले सूफ़ी दरवेश थे। उन्होंने कई दशक एक कामिल मुर्शिद की तलाश में मज़हब के एक से दूसरे कई केंद्रों में सफ़र करने में और मशहूर पीरों उस्तादों के उपदेश सुनने में बिता दिए थे। हालांकि वे कई ऐसे लोगों से मिले जिन्हें वे रूहानी तौर पर ऊंची रसाई वाले मानते थे, लेकिन कोई भी उनकी कड़ी कसौटी पर खरा नहीं उतरा। शम्स कहते हैं, मैं जिसे भी प्यार करता हूँ उस पर जुल्म ढाता हूँ। अगर वह उसे मंजूर कर लेता है तो मैं खुद को एक गेंद की तरह उसकी गोद में डाल देता हूँ। भरोसा वह चीज़ है जिसका अभ्यास आप एक 5 साल के बच्चे के साथ करते हैं, ताकि वह आप पर यकीन करे और आपको पसंद करे। मगर असली चीज़ है वह जुल्मो सितम। करीब 45 वर्ष की उम्र के दौरान शम्स ने चाहा कि उन्हें खुदा की चुनी हुई किसी ऐसी रूह का साथ मिले जिसे वे अपना हमसफ़र और दोस्त बना सकें। वे कहते हैं, मुझे सपने में बताया गया कि मुझे किसी संत की सोहबत दी जाएगी। मैंने पूछा कि वह कहाँ हैं। फिर अगली रात मुझे सपने में कहा गया कि वह रूम में है। कुछ समय के बाद फिर मुझे सपने में कहा गया कि अभी सही वक्त नहीं आया। हर काम वक्त पर मुनस्सिर होता है। सन 1228 में शम्स ने दमिश्क के अपने एक दौरे के दौरान रूमी को देखा और उनके प्रवचन भी सुने। उस वक्त रूमी इस्लामी कानून की पढ़ाई कर रहे थे। उस नौजवान की ओर कशिश महसूस करने के बावजूद शम्स जानते थे कि रूमी अभी उनकी रूहानी रहनुमाई के लिए तैयार नहीं है। शम्स रूमी से कहते हैं, मैंने शुरू से ही तुम्हारे लिए गहरी कशिश महसूस की थी। हालांकि जब तुमने बोलना शुरू किया तो मैं समझ गया कि अभी तुम में उन गहरे राजों को समझने की काबिलियत नहीं है। पर अगर मैं उस वक्त उन राजों के बारे में तुम्हें बताता तो तुम्हारे लिए उन्हें समझ पाना मुमकिन ना होता और वह वक्त यूं ही बर्बाद होता। अफलाकी ने भी रूमी और शम्स की मुलाकात के बारे में लिखा है और इसका जिक्र कुछ पुराने दोस्त यानी रूमी के पुराने शागिर्दों ने भी किया था। वे शम्स को लोगों के बीच काले चौगे और काली टोपी वाला एक अजीब आदमी कहकर बुलाते हैं और बताते हैं कि मौलाना ने शम्स का हाथ थामकर फरमाया, ए दुनिया को पाक करने वाले मुझे बचा। लेकिन शम्स भीड़ में गायब हो गए। वाकई में शम्स एक अलग से बेगाने शख्स थे, बिल्कुल अजनबी। रूमी पर पड़े
शम्स के गहरे प्रभाव के बाद भी विद्वानों के पास शम्स की हस्ती का तब तक कोई सबूत ना था जब तक 20वीं सदी के दौरान शम्स के उपदेशों और प्रवचनों का एक संकलन मुलाकात-ए-शम्स-ए-तब्रीज़ी तुर्की के एक पुस्तकालय के पुराने दस्तावेज़ों के साथ ना मिला। एक संकलन के मिलने से पहले कुछ इतिहासकारों ने तो यहाँ तक मान लिया था कि शम्स रूमी की कल्पना मात्र हैं। अपनी मसनवी में रूमी कहते हैं, इस जहान में शम्स जैसा अजनबी और कोई नहीं। और शम्स अपने बारे में कहते हैं, अगर तुमने मुझे देख लिया फिर तुम अभी भी खुद को कैसे देख पाते हो? अगर खुशी तुम्हारी है तो तुम गम में कैसे डूब सकते हो? अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर तुम अब भी अपने साथ कैसे हो? और अगर तुम मेरे यार हो तो फिर तुम्हारी अब तक खुद से यारी कैसी है? सन 1244 में नवंबर के एक साफ दिन यह अजनबी शम्स कोनिया पहुंचा, लेकिन उस वक्त के रिवाज के मुताबिक सूफियों की सराय में नहीं बल्कि एक सौदागर के भेष में सौदागरों की सराय में ठहरा। उनकी पहली मुलाकात के 16 साल बाद मुरीद के रूप में रूमी तैयार थे और इसलिए शम्स मुर्शिद के रूप में हाजिर हुए। दोस्तों, अभी तक की डीप हिस्ट्री इसलिए बताई गई ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके कि उस ज़माने में कैसे इन दोनों के बीच मुलाकात हुई, गुरु और चेले के बीच में, शिष्य के बीच में। इतने पुराने ज़माने में उस माहौल को देखते हुए इतनी मुश्किलों के बावजूद भी वो मिले और फिर उतनी ज़्यादा इन्हें कदर हुई। तो इसका पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। फ़िलहाल आप यहाँ तक बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो अभी तक की, कितनी आपको मोटिवेशन मिली या नहीं।